Hello students, how are you? In this session we'll be taking up time, speed and distance questions from SNAP previous year examinations. Firstly, let us discuss some basic concepts of time, speed, distance in 1 or 2 minutes. So time, speed, distance has one basic formula, that is time into speed is equal to distance. And as we know that time is proportional to distance, which implies कि जितना ज़्यादा टाइम हम ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगी. Similarly, speed is also proportional to distance. So more the speed, more will be distance. More the time, more will be distance. Isn't it so? Then there are three cases which we must understand in time, speed, distance. First case is when the time is constant. So if time is constant, in two cases if time is same, constant हो या फिर same हो, so in that case our distance will be proportional to speed, which implies more the speed, more will be our distance. Easy scenario. Second case is when speed is constant or same. So if that is so, तो distance will be proportional to time. Time ज़्यादा होगा तो distance भी ज़्यादा traveled होगी. Third and most important case, that is distance is constant or same. कि दो अलग अलग persons हैं या एक ही person है जिसके लिए distance same है दो अलग अलग time periods में. And if that is so, if distance is same, which implies that speed into time is constant and speed will be inversely proportional of time. तो अगर दो सिनेरियोज में हमारा स्पीड s1 और s2 है तो s1 upon s2 will be equal to t2 upon t1. Okay. Now let us move to questions. अब questions करना शुरू करते हैं. First question लेते हैं आज का. Question number 1 is, in a 1000 meter race, Aman gives 100 meter head start to Bipin and beats him by 200 meters. In the same race, Aman also gives 100 meter head start to Cyrus and beats him by 300 meters. So in how many meters would Bipin beat Cyrus in a new 200 meter race? तो initially 1000 meter की रेस है हमारी. और रेस में कोई दूसरे को कब हराता है? जब एक फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाए. सो अमन गिव्स 100 मीटर हेड स्टार्ट टू बिपिन. So Aman is a starting point while Bipin is 100 meters ahead already. But still Aman beats him by 200 meters, which implies कि when Aman traveled complete 1000 meter distance, Bipin was still 200 meters behind him. So this distance will be 700 meters. Which implies that in same time, Aman will be traveling 1000 meters while Bipin will be traveling 700 meters. So the ratio of their distances is 1000 and 700. So speed का ratio क्या आ जाएगा? क्योंकि time same है, time is constant. In this case, time is same. And if time is same, distance और speed proportional हो गया. Distance का ratio आ रहा है 10:7. तो यही same speed का ratio होगा 10:7 का. Then in the same race, Aman also gives 100 meter head start to Cyrus and beats him by 300 meters. Similar scenario है. That Aman ने Cyrus को 100 meters का head start दिया and still beats him by 300 meters. So Aman ने तो पूरा रेस फिनिश कर दिया, but Cyrus is 300 meters behind, यानी कि Cyrus ने 600 meters ही कवर अप किया है. So Aman, Bipin and Cyrus का स्पीड का रेशियो आ जाएगा 10:7:6. Then the question is asking how many meters would Bipin beat Cyrus in a new 200 meter race. Now we know Bipin and Cyrus का स्पीड का रेशियो is 7:6. So in the new race, again Bipin और Cyrus सेम टाइम के लिए ट्रेवल करेंगे. There is no head start, nothing. So अगर स्पीड का रेशियो आ रहा है 7:6 Bipin और Cyrus का, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस विल ऑल्सो बी 7:6. यानी कि अगर बिपिन 7 मीटर्स ट्रैवल करेगा सेम टाइम में, साइरस विल ट्रैवल 6 मीटर्स. सो बिपिन विल बीट साइरस डेफिनेटली. और गैप कितना होगा? 1 यूनिट का गैप होगा. जहां पे कि 7 यूनिट कितना है? 7 यूनिट इज इक्वल टू 200 मीटर्स बिकॉज रेस इज 200 मीटर्स की. सो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 7 विच विल बी 28.57 मीटर्स.
इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑप्शन बी विल बी द आंसर इन दिस वन. अच्छा, आई विल ऑल्सो गिव यू टाइम स्टैम्प्स फॉर एवरी ईयर कि 2020 टू 21 20, सो दैट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हो इन लास्ट 1-2 ईयर्स का, तो डायरेक्टली आप स्किप करके अगले वाले पार्ट में मूव कर सको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is, Renuka walks on a moving escalator at 8 steps per second and arrives at the other end at 12 seconds. She returns back walking at the same speed and reaches the starting point in 36 seconds. So you have to find the number of steps in the escalator. Now escalator wala case is same as boat and stream, similar to boats and stream cases. मतलब क्या हुआ, जब बोट और स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, स्पीड्स विल एड अप, and when they are in opposite direction, speeds will subtract. Similarly, when Renuka and escalator are in same direction, so speeds दोनों का add up हो जाएगा. Relative speed will be Renuka का speed plus escalator का speed, and when both are in opposite directions, तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा, और डेफिनेटली रेनुका का स्पीड शुड बी ग्रेटर देन एस्केलेटर का स्पीड, तभी तो रेनुका जहां जाना चाहती है पहुंच पाएगी. अदरवाइज अगर एस्केलेटर का स्पीड ज्यादा होगा तो रेनुका उल्टी डायरेक्शन में जाना तो चाहेगी पर कभी पहुंच नहीं पाएगी. पहले वाले केस में टाइम कम लग रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में होंगे रेनुका और एस्केलेटर, और सेकंड वाले केस में टाइम ज्यादा लग रहा है. वी नो कि रेनुका का स्पीड इज गिवन एज 8 स्टेप्स पर सेकेंड, तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ स्टेप्स कितना आ जाएगा, टाइम लग रहा है 12 सेकेंड्स का. रेनुका का स्पीड इज 8, एस्केलेटर का स्पीड इज ई, 8 प्लस ई, 12 इंटू 8 प्लस ई. ठीक है, सेकंड वाले सिनेरियो में दिस विल बी 36 इज टाइम, और रेनुका का स्पीड माइनस एस्केलेटर का स्पीड करना पड़ेगा. सो दीज टू शुड बी इक्वल, नंबर ऑफ स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे, सेम एस्केलेटर है. 12 से काटेंगे, 12 3 36, सो 8 प्लस ई विल बी इक्वल टू 24 माइनस 3e, सो 4e इज इक्वल टू 16. सो यहाँ से e विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4 स्टेप्स पर सेकेंड. बट क्वेश्चन में एस्केलेटर का स्पीड नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ स्टेप्स, तो वापस से इस वैल्यू को हम इक्वेशन में डाल देंगे. और आंसर विल बी 12 इंटू 8 प्लस 4, so 12 into 12, 144 steps will be our answer. Is this clear? Option C will be our answer. Okay. ठीक है. Next question. Next question is saying a train after traveling 150 kilometers meets with an accident and then proceeds at 3/5 of its former speed and arrives at its destination 8 hours late. Had the accident occurred 360 kilometers further, it would reach the destination 4 hours late. So we have to find the total distance traveled by the train. It is very easy question, but एक बार डायग्राम बना के समझ जरूर लेते हैं. So initially 150 kilometers the train is traveling with normal speed. Then what happens? There is an accident, and after the accident, initially let us say speed is equal to s. After the accident, speed कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, यानी कि speed is 3s/5. And then train arrives at its destination 8 hours late. In second case, the accident did not happen at this place, but it happens 360 kilometers further, यानी कि 360 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट होता है. And due to this, now the train is 4 hours late. So किसी भी ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है? We have to check for the points जहां पे की चीजें बदली हैं, जहां पे की चीजें बदली हैं. अब इनिशियली 150 किलोमीटर्स में तो पहले भी सेम स्पीड था, एस का स्पीड था, अभी भी एस का ही स्पीड है. तो नथिंग हैज चेंज्ड इन दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. इनिशियली पहले वाले केस में क्योंकि एक्सीडेंट पहले हो चुका था, सो स्पीड इज 3s/5, बट यहां पे स्पीड s है, तो यहीं पे ही सारा का सारा बदलाव आया है, सारा चेंज आया है, इजंट इट सो? सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इन बोथ द सिनेरियोस. और इसके बाद में पता है यहाँ पे तो 3s/5 है, और यहाँ भी एक्सीडेंट हो चुका है, सो दिस इज 3s/5. सो नथिंग हैज चेंज्ड हियर, सो ये भी बिल्कुल सेम रहेगा. एंड व्हाट हैज हैपेंड दैट इनिशियली ट्रेन वाज 8 hours late, बट इन सेकंड केस इट इज 4 hours late. सो बेसिकली ट्रेन वाज गेटिंग 4 hours late फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. 4 hours late हो रही थी ट्रेन 360 किलोमीटर की वजह से. Isn't it so? So इनिशियली 8 hours लेट हो रही थी, यानी इसका डबल लेट हो रही थी, यानी कि डिस्टेंस रही होगी हमारी यहां से लेके यहां तक की. दिस डिस्टेंस वुड हैव बीन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 720 किलोमीटर्स. और इसकी वजह से ट्रेन वाज गेटिंग 8 hours लेट, और इनिशियली 150 और है हमारा, तो 720
plus 150, this will be equal to 870 kilometers. Our total distance will be 870. This will be our answer, option B. Is it clear? Okay. Now moving to the next question. Next question is saying a car covers 50% of the journey at 25 km per hour, 40% of the journey at 20 km per hour, and then remaining at 10 km per hour. 50% at 25, 40% at 20 and 10% at 10. डायरेक्टली ये डिविजिबल वैल्यूज है, तो मान लिया कि 50% हमारा 50 किलोमीटर ही है. दिस आर स्पीड वैल्यूज. डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं कि 50% हमारा 50 किलोमीटर्स है, 40% इज 40 किलोमीटर्स, 10% इज 10 किलोमीटर्स. सो आवर एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, TD by TT, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस विल बी 50 + 40 + 10 यानी कि 100, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 50 by 25 plus 40 by 20 plus 10 by 10, यानी कि this will be 100 upon 2 plus 2 plus 1, so 100 by 5, 20 km per hour. Is this clear? Option B will be the answer. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A covers 1/4 of his journey at 20 km per hour and 1/3 of the rest at 25 km per hour and half of the rest at 30 km per hour and rest at the speed of 40 km per hour. What is the average speed of A? तो बेसिकली A क्या है, कुछ स्ट्रेच चला है 20 की स्पीड से, कुछ 25 से, सम एट 30 एंड सम एट 40. सो बेसिकली जब भी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, हमेशा याद रखना एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. सो मिनिमम वैल्यू से इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर और मैक्सिमम वैल्यू से छोटी होगी, यानी कि जो हमारा आंसर है दैट शुड बी बिटवीन 20 एंड 40. बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दैट ओनली, यू नो दैट ऑप्शन ए या ऑप्शन बी तो आंसर ही नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी या डी में से आंसर होगा. इजंट इट सो? तो इनिशियली 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट 20 km per hour. सो 1/4 जर्नी कंप्लीट किया है एट द स्पीड ऑफ 20. देन नेक्स्ट क्या है, 1/3 ऑफ द रेस्ट, बचा कितना है 3/4 बचा है, और इसका 1/3 यानी कि 3 से 3 कट गया, दिस इज ऑल्सो 1/4, तो रेस्ट 1/4 एट 25. देन अगेन अब बचा है 1/2 और उसका हाफ ऑफ द रेस्ट यानी 1/2 का 1/2 विच इज ऑल्सो 1/4 एट द स्पीड ऑफ 30, एंड देन रिमेनिंग इज 1/4 ओनली, तो दैट एट 40. सो दिस इज अवर सिनेरियो. ठीक है, सो 1/4 1/4 है. एलसीएम ले लेते हैं इन वैल्यूज का, 20 25 30 और 40 का. क्या एलसीएम आएगा हमारा 600 आएगा. ठीक है, 600 आएगा. सो लेट अस से 600 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बिकॉज सेम ही डिस्टेंस है. टोटल डिस्टेंस हमारी 2400 है. ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट 2400. टोटल टाइम कितना होगा, 600 by 20 इज 30, 600 by 25 इज 24, 600 by 30 इज 20 एंड 600 by 40 इज 15. ये आएगा 30 + 24 + 20 + 15 विच इज 89 ओनली, एंड ऊपर आएगा 2400. इसके बाद तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली 2400 हमारा 89 से डिविजिबल तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Question saying Indian Express travels at 60 km per hour and it halts for a fixed time every hour. Due to the halts, the average speed becomes 50 km per hour. What find the time of the halt? Very easy question, very conceptual, very easy. देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे कि दिया है कि एक ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, कुछ भी चल रहा है, एंड इट हॉल्ट्स फॉर अ फिक्स टाइम एवरी आवर्स, उसका स्पीड दिया है विदाउट हॉल्ट, स्पीड दिया है बिकॉज ऑफ हॉल्ट, तो हमें क्या देखना है, देखो सिंपल सा चीज़ है कि लेट अस से इफ a train is moving at the speed s, so in 1 hour it will travel s kilometers. ठीक है, s किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है, in 1 hour it will travel s kilometers, and if let us say this is traveling s minus 10 kilometers instead in 1 hour actual scenario में. ठीक है, this is when it continuously travels. तो एक्चुअल में हो रहा है कि 1 hour में it is traveling s minus 10, तो 10 किलोमीटर कम ट्रेवल कर रही है, एंड दिस 10 किलोमीटर जो कम ट्रेवल कर रही है, ये क्यों कम ट्रेवल कर रही है, बिकॉज ऑफ हॉल्ट्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ हॉल्ट्स. और टाइम कितना लग रहा होगा, क्योंकि अगर वो ये 10 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रही है, जो नहीं ट्रेवल कर पा रही है, जो कम ट्रेवल कर रही है, इसका बस हमें टाइम निकाल लेना है. ठीक है, सिमिलरली इस केस में 60 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेन ट्रेवल करती है नॉर्मली,
बट इट ऑल्सो हॉल्ट्स फॉर अ फिक्स टाइम, और इसकी वजह से एवरेज स्पीड हो जाती है 50, यानी कि 10 किलोमीटर कम हो जा रही है स्पीड, 10 किलोमीटर कम हो जा रही है स्पीड। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा? टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 10 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जा रही है, क्योंकि अगर 1 घंटे में स्पीड हमारी 10 किलोमीटर कम हुई है तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा 1 आवर में दैट विल ऑल्सो डिक्रीज बाई 10 किलोमीटर ओनली। और स्पीड कितना रहेगा? 60 यूजुअल स्पीड है इसका, तो 10/60 यानी कि 1/6 आवर्स विच इज इक्वल टू 10 मिनट्स, दैट विल बी द हॉल्ट टाइम, दैट विल बी द हॉल्ट टाइम, ऑप्शन ए। ठीक है, सो अगर जनरलाइज कर दें इस बात को तो हॉल्ट टाइम विल ऑलवेज बी इक्वल टू, बट इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, समझ लोगे तो फिर कुछ भी नहीं है, केक वॉक है। तो हॉल्ट टाइम विल ऑलवेज बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन विदाउट हॉल्ट माइनस स्पीड विद हॉल्ट डिवाइड बाय स्पीड विदाउट हॉल्ट। ठीक है, बट इसको याद नहीं रखना है, समझ लेना है कि अगर ट्रेन हमारी नहीं रुकती तो 60 किलोमीटर ट्रैवल करती, रुकी है तो 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर कम ट्रैवल किया है, 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में 10 मिनट्स लगते 60 की स्पीड से, तो 10 मिनट्स इज द हॉल्ट टाइम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Brigadier Rastogi travels from A to B at 40 km per hour on bike. He travels from B to C at 10 km per hour on cycle. The distance from A to B is equal to B to C. Then he travels from C to A via B at 24 km per hour by auto rickshaw. So you have to find his average speed. You must be seeing that average speed का question is very frequent, isn't it so? So A से B तक he is going by bike 40 की स्पीड से. Then from B to C he is going at a speed of 10, और फिर C से A आता है at the speed of 24. ओके, सो एवरेज स्पीड निकालना है। अगेन एज्यूम कर लेते हैं 40, 10 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40, 10 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 120। So let us say this distance is 120, this is 120, तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 120 प्लस 120 जाने में और फिर लौटने में भी 240, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 480 डिवाइड बाय टोटल टाइम। पहले में आएगा 120/40 यानी 3 आवर्स का, प्लस 120/10 विच इज 12 आवर्स, प्लस 240/24 यानी कि 10 आवर्स का। सो 480 डिवाइडेड बाई 25, 5 से काटेंगे नीचे 5 आएगा, ऊपर 96 आएगा। 96/5 विल बी नथिंग बट 19.2 किलोमीटर पर आवर। Is that clear? Option B will be the answer. Okay. Next question. Question is saying Rohan and Rahul are 144 kilometers apart on points A and B respectively. So the distance between them is 144 kilometers. Now Rohan travels constantly at the speed of 8 km per hour. But Rahul travels 4 km in first hour, 5 km in second hour, 6 km in third hour, and so on. So we have to find the point where they all meet. Okay. हो क्या रहा है यहाँ पर? रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों के दोनों क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड्स विल एड अप। अगर रोहन की स्पीड S1 है और राहुल की स्पीड S2 है तो रिलेटिव स्पीड विल बी S1 प्लस S2। यानी कि फर्स्ट आवर में अगर बात करें, फर्स्ट आवर में रोहन और राहुल की स्पीड जब एडअप होगी, रोहन की स्पीड है 8, राहुल की है 4, सो 8 + 4 दिस विल बी 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 12 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे फर्स्ट आवर में। सेकंड आवर में रोहन की स्पीड तो चेंज नहीं होगी बट राहुल की स्पीड 5 हो जाएगी, तो 8 + 5 13 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। थर्ड आवर में 8 + 6 यानी कि 14 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। फोर्थ आवर में 8 + 7 यानी कि 15 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर है? एक अप्रोच तो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्योंकि एपी बन रही है क्लियरली, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो एक अप्रोच क्या हो सकता है कि हम पहले एपी का फॉर्मूला निकालें, सम का फॉर्मूला निकालें और फिर सम के फॉर्मूले से इक्वेट करके सॉल्व करें
ठीक है, वो अप्रोच हम बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर होगा, बेटर अप्रोच होगा। देखो 144 हमें नंबर गिवन है, ठीक है, स्पीड्स हम देख रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि लगातार इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इजंट इट सो? क्या 144 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं? दिस विल बी 16 इंटू 9, या तो 12 इंटू 12 होगा, बट 12 इंटू 12 से काम नहीं चलेगा, 16 इंटू 9 भी है, यानी कि दिस कुड बी पॉसिबल कि 16 किलोमीटर्स का स्ट्रेच ट्रैवल किया ऑन एन एवरेज 9 आवर्स में। दिस कुड बी पॉसिबल। क्या ऐसा हो रहा है? डेफिनेटली ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगला आएगा 16, देन 17, 18, 19 एंड 20, एंड इफ यू सी टोटल 9 टर्म्स हैं और एवरेज यहाँ पे 16 आ रहा है, एवरेज यानी कि बीच का टर्म एपी है, इजंट इट सो? तो 16 इंटू 9 डेफिनेटली इक्वल टू 144 हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, स्पेशली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर आप इस बात को यूज़ कर ले तो स्ट्रेट अवे आपको पता है कि टोटल 9 आवर्स ट्रैवल टाइम आएगा, टोटल ट्रैवल टाइम विल बी इक्वल टू 9 आवर्स। ओके, क्वेश्चन पूछा फाइंड द पॉइंट वेयर दे ऑल मीट। 9 आवर्स में रोहन कितना चला होगा? रोहन चला होगा 9 इंटू 8, यानी कि 72 किलोमीटर्स, और टोटल 144 है, यानी कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मिलेंगे, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मिलेंगे। ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। और ये टाइम सेव करेगा, आपका टाइम किल नहीं करेगा अगर आप इस बात को ऐसे ऑब्जर्व कर लोगे तो। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तब क्या करोगे? तब हमें एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, तब हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट अस से इनको टोटल n आवर्स लग रहे हैं, n आवर्स के बाद में मिलते हैं, ओके, n आवर्स के बाद में मिलते हैं, और जो सम ऑफ द डिस्टेंसेज आएगा दैट विल बी इक्वल टू 144। और क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म हमारा 12 है, 12 फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 1 का आ रहा है, बिकॉज 12 से 13 1 किलोमीटर, ठीक है। सो हमारा सम 144 विल बी इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स d। पुट कर देते हैं वैल्यू, सो दिस विल बी इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 12 प्लस n-1 इंटू 1, सो दिस विल बिकम n/2 इंटू 24 प्लस n-1, यानी कि 23 प्लस n, एंड दैट इज इक्वल टू 144। 2 को दूसरे साइड में लेके चले जाएंगे तो n इंटू 23 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 144 इंटू 2। अगेन इंस्टेड ऑफ क्वाड्रेटिक बनाने के यहाँ भी हम फैक्टराइज करके ही देखना पसंद करेंगे, तो दिस विल बी 16 इंटू 9, 144 इज 16 इंटू 9 इंटू 2, यानी कि 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32, 32 एंड 9 बीच का गैप कितना है? 23 है, वही हमको चाहिए है, ठीक है। सो डेफिनेटली n विल बी इक्वल टू 9 और 23 प्लस n आ जाएगा 32, और n क्या है? 9 क्या है? 9 आवर्स है। इसके बाद की कहानी वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियसली किया है, क्लियर है? तो अदरवाइज हमको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना पड़ता, और अगेन ऑप्शन डी ही आंसर आता। क्या लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और कोई आपकी क्वेरी है या किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा डिफिकल्टी बन सकता है कभी, अगर एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना हो कि n की वैल्यू इंटीजर में ना आए, यानी कि बेसिकली ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल कि 8 आवर्स तक तो वो कंप्लीट चले, बट 8.5 घंटे में मिल गए, 8.5 आवर्स में मिल गए, तो 0.5 आवर्स वाला वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। बट वैसा भी क्वेश्चन में आ सकता है, ओके। सो उस चीज़ के लिए कॉशियस रहना है, फिर हमको मैनुअली वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, या फिर उस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा लिमिटेड टाइम की वजह से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question is length of two trains is 150 meters each. When they are moving in opposite directions, they cross each other in 20 seconds. And when they are moving in the same direction, then the faster train passes slower train in 40 seconds. We have to find out speed of the faster train. पहले वाले केस में क्या है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 20 सेकंड्स का टाइम लग रहा है, टाइम कम लगेगा बिकॉज स्पीड्स एड अप होंगी। जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज स्पीड्स घटेंगी, सबट्रैक्ट होंगी। लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स इज 150 मीटर्स ईच। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? दैट टोटल डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स, यानी कि L1 प्लस L2, और जब दोनों 150 हैं यानी कि 300 मीटर्स होगा, ठीक है। फर्स्ट केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अगर स्पीड पहले वाले की S1 है, दूसरी वाले की S2 है, तो S1 प्लस S2 विल बी इक्वल टू 300 मीटर्स चलने में लग रहा है 20 सेकंड्स का टाइम, तो 300 डिवाइड बाई 20 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। और सेकंड वाले केस में जब सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड घटेगी। अगर हम मान लें S1 इज द फास्टर ट्रेन, S1 ग्रेटर देन S2 है, तो स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2, एंड दैट विल बी 300 बाई 40, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकंड।
अब अगर दोनों इक्वेशंस को हम एडअप कर लें, S2 तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो 2 टाइम्स S1 विल बी इक्वल टू 22.5 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ से S1 विल कम आउट टू बी इक्वल टू 11.25 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर. एंड S2 विल बी 3.75 मीटर पर सेकेंड. अगर क्वेश्चन में निकालना होता तो S2 विल बी 3.75 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? ओके. Moving on to the next question. Again, similar question. Excluding stoppages, the speed of the bus is 50 km per hour. And including stoppages, this is 40 km per hour. यानी कि जब हम स्टॉपेजेस को इंक्लूड कर देते हैं तो बस 10 किलोमीटर कम ट्रैवल करती है. तो टाइम विल बी, हाल्ट टाइम विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगी. ठीक है, कम ट्रैवल कर रही है. और बस की स्पीड कितनी है? 50 है. तो टाइम कितना लगता है 50 की स्पीड से 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में? 10/15 यानी कि 1/5 आवर्स का. Which is nothing but 1/5 hours into 60 minutes, यानी कि 12 मिनट्स का टाइम हो जाएगा. हॉल्ट टाइम विल बी 12 मिनट्स. ओके. नेक्स्ट वन. इन अ 4 किलोमीटर रेस, Anu defeats Banu by 600 meters. Banu gives Kaira a start of 200 meters and both end the race at the same time. How much start should Kaira get from Anu to end the race at the same time? 4 किलोमीटर की रेस है. अनु डिफीट्स बानू बाई 600 मीटर्स, यानी कि अनु तो पूरा का पूरा 4000 मीटर्स ट्रैवल करती है, बट बानू 600 मीटर्स कम ट्रैवल करती है, यानी कि 3400 मीटर्स ट्रैवल करती है. ओके. देन क्वेश्चन इज सेइंग बानू गिव्स कायरा अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर्स, यानी कि बानू से कायरा 200 मीटर्स आगे खड़ी होती है. एंड दे एंड द रेस एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों के दोनों एंड पॉइंट पे साथ में पहुंचते हैं. बानू ने ट्रैवल किया होगा 4000 मीटर्स, जबकि कायरा ने ट्रैवल किया होगा 3800 मीटर्स, क्योंकि 200 मीटर्स ऑलरेडी आगे कायरा खड़ी थी. यानी कि अगर बानू और कायरा के बारे में बात करें सेपरेटली, सो बानू जितने टाइम में 4000 मीटर्स ट्रैवल करती है उतना ही टाइम में कायरा इज ट्रैवलिंग 3800 मीटर्स. यहाँ से हमारा अनु और बानू का क्या स्पीड आ जाएगा, क्या रेशियो आ जाएगा स्पीड का? डिस्टेंस का रेशियो है 4000 यानी कि 40:34 यानी कि 20:17, और वही सेम स्पीड का रेशियो भी होगा क्योंकि टाइम सेम है 20:17. और बानू और कायरा के केस में स्पीड का रेशियो आ जाएगा 20:19 का. क्वेश्चन में हमसे पूछा हाउ मच स्टार्ट शुड कायरा गेट फ्रॉम अनु टू एंड द रेस एट द सेम टाइम. तो हमें अनु और कायरा का स्पीड का रेशियो चाहिए. ठीक है, तो बानू की जो स्पीड है उसको दोनों जगह पर हमें सेम करना पड़ेगा, यानी कि पहली वाली इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर दें 20 से और दूसरी वाली में 17 से. तो अनु, बानू और कायरा का स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 20 × 20 400, 17 × 20 340, एंड नेक्स्ट 17 × 19 दैट विल बी 323. ठीक है, एक छोटी सी चीज़ कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे आपको करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 17 × 19, तो अब पूरा गुणा करने लग जाओगे, ज़्यादा दिक्कत होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, देखो ये 17 हमारा 18 से 1 कम है और 19 18 से 1 ज़्यादा है. जब भी ऐसा होगा दिस इज 18 - 1, दिस इज 18 इंटू 18 + 1, यानी कि a - b इंटू a + b, तो a² - b² हो जाएगा, यानी कि 18 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर. 18 का स्क्वायर है 324 - 1, सो दिस इज 323. स्पेशली जहाँ पे बड़ी कैलकुलेशन होगी वहाँ पे ये चीज़ बहुत काम आएगी. ठीक है, तो हमेशा स्मार्टली हमें कैलकुलेशन करना है. आंसर विल बी 323 इन दिस केस. तो 323 मीटर्स ट्रैवल करेगी कायरा, सेम टाइम में अनु ट्रैवल करेगी 400 मीटर्स. यानी कि अगर 400 मीटर्स की रेस होगी तो फिर कायरा 77 मीटर्स पीछे रहेगी. तो अगर दोनों को सेम टाइम पे रेस खत्म करनी है तो अनु को कायरा को 77 मीटर्स का हेड स्टार्ट देना पड़ेगा. कब? जबकि रेस हमारी 400 मीटर्स की हो. बट क्वेश्चन में हमारी रेस कितनी है? 4000 मीटर्स की है. 4000 मीटर्स की है, सो हमें हेड स्टार्ट भी 10 टाइम्स देना पड़ेगा, यानी कि 770 मीटर्स का स्टार्ट देना पड़ेगा. और आंसर विल बी ऑप्शन सी. क्लियर है? ओके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग टू क्रॉस अ मैन running at 9 km per hour in the direction of the train, a train takes 40 seconds, and to cross another man running at 6 km per hour in the same direction it takes 30 seconds. ठीक है, जब भी हम क्रॉसिंग करेंगे एक पर्सन का और ट्रेन का क्रॉसिंग करेंगे तो ट्रेन अपना पूरा लेंथ ट्रैवल करेगी पर्सन को क्रॉस करते हुए. ठीक है, पूरा लेंथ ट्रैवल करेगी.
सो अगर ट्रेन का लेंथ हमारा L है, ओके, और साथ में क्या है, पर्सन भी ट्रैवल कर रहा है, इस क्वेश्चन में पर्सन भी ट्रैवल कर रहा है, मैन रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। तो अगर पर्सन का जो स्पीड है और ट्रेन का स्पीड है दोनों सेम डायरेक्शन में है, S1 है और पर्सन का स्पीड S2 है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2 ट्रेन की, इजंट इट सो, घटेगी पर्सन की स्पीड। तो पहले वाले केस में स्पीड हो जाएगी, अगर ट्रेन की स्पीड S है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S माइनस 9 और टाइम लग रहा है 40 सेकेंड्स का। और सेकेंड वाले सिनारियो में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S माइनस 6 और टाइम लग रहा है 30 सेकेंड्स का। हमें S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम ही होगा दोनों केसेस में, तो पहले वाले केस में डिस्टेंस ट्रेवल होगा 40 इंटू S माइनस 9 और दूसरे वाले केस में होगा 30 इंटू S माइनस 6, 0 0 काट दो, ठीक है। सो दिस विल बी 4S माइनस 36 इज इक्वल टू 3S माइनस 18, सो S विल बी इक्वल टू 18, ओके, S विल बी इक्वल टू 18, एक, हाँ ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? ऑप्शन बी भी आंसर क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी, देखो हमारा जो स्पीड गिवन है वो दिया है किलोमीटर पर आवर में, बट हमने टाइम की वैल्यू सेकंड्स में ली है, पर सेकंड्स को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किया क्यों नहीं है यहाँ पे? किया क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ इसलिए हमने उसको नहीं कंसिडर किया है। अदरवाइज ये ध्यान रखना है कि यूनिट्स हमारी सेम होनी चाहिए। अगर हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो जो टाइम की वैल्यू है दैट शुड ऑल्सो बी इन आवर्स, ओके, दैट शुड बी क्लियर। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए उससे हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आने वाला है, इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया है। एक और चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है, देखो पहले वाले केस में हमारा क्या है, टाइम लग रहा है 40 सेकंड्स का, दूसरे वाले केस में टाइम लग रहा है 30 सेकंड्स का, और हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल सेम है क्योंकि ट्रेन अपनी ही लेंथ ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस सेम है। तो अगर टाइम हमारा पहले केस में 40 है, दूसरे में 30 है, तो टाइम का रेशियो अगर 4:3 का है तो स्पीड का रेशियो ठीक है इसका उल्टा होगा, यानी 3:4 का होगा, इजंट इट सो? स्पीड का रेशियो 3:4 का होगा, यानी पहले वाले केस में स्पीड 3 होगी, दूसरे वाले में 4 होगी, दूसरे वाले में 1 यूनिट ज्यादा होगी, और पहले वाले केस में हम 9 घटा रहे हैं स्पीड में, दूसरे वाले केस में 6 घटा रहे हैं, यानी 3 कम घटा रहे हैं, तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 यूनिट विल बी इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। और पहले वाले केस में 9 किलोमीटर पर आवर है कितना, S माइनस 9, यानी कि S विल बी इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वैसे तो टाइम सेम ही लगने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बट ये जो आपको अंडरस्टैंडिंग देता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार बार आपको क्वेश्चंस में ये चीज़ प्रैक्टिस जरूर करनी है, अगर नहीं कर रहे हो, इससे घबरा रहे हो, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो जो बेसिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ये बार बार जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपको समझ में आएगा और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। कई बार हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए एग्जाम में जो कि आप स्ट्रेट अवे सॉल्व कर लो बिना कोई पेन से लिखे हुए, बिना कुछ भी लिखे हुए, कोई क्वेश्चन लिखे हुए, ठीक है। तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिस कर रहे हो, इनको स्किप कर रहे हो, या बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़्यादा बेहतर है आप इन चीज़ों को समझ के, रेशियो को यूज़ करके और क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अभिनव लीव्स मुंबई एट 6 AM and reaches Bangalore at 10 AM. Praveen leaves Bangalore at 8 AM and reaches Mumbai at 11:30 AM. At what time do they cross each other? In any such question, जब भी हमें मीटिंग टाइम पता लगाना हो, क्रॉसिंग पता लगाना हो, एक्सीडेंट पता लगाना हो, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी मीटिंग टाइम हमें पता लगाना है दो लोगों के बारे में, दो लोग एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि दोनों का जो स्टार्टिंग टाइम है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर सेम नहीं है तो पहले उसको सेम हमें को करना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम क्वेश्चन में प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट होगा तभी फिर आगे बाकी चीजें फिट हो पाएंगी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में क्या है, अभिनव हमारा मुंबई से लीव कर रहा है 6 AM पे, बट प्रवीण इज लिविंग बैंगलोर एट 8 AM, तो टाइम इज डिफरेंट, स्टार्टिंग टाइम इज डिफरेंट। तो सबसे पहले अभिनव को हमें 6 AM से लेकर 8 AM तक चलाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हम बाकी बात कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो 6 AM पे Abhinav is leaving Mumbai, while 8 AM पे Praveen will leave Bombay. So 6 AM से लेके 8 AM तक क्या स्टोरी बनेगी हमारी,
अभिनव को टाइम कितना लग रहा है 6 AM पे ही इज लिविंग मुंबई एंड रीचिंग बैंगलोर एट 10 AM, यानी कि अभिनव इज टेकिंग 4 hours ऑफ टाइम फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर. सिमिलरली प्रवीण इज लिविंग बैंगलोर एट 8 AM एंड रीचेज मुंबई एट 11:30 AM, यानी कि 3.5 hours का टाइम लग रहा है. डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है. वन इज coming from Mumbai to Bangalore, another is going from Bangalore to Mumbai, but distance is same. Isn't it so? So पहले वाले को लग रहा है 4 hours का टाइम, दूसरे को 3.5 hours का टाइम. टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 4:3.5, यानी कि 8:7 का टाइम का रेशियो है. स्पीड का रेशियो ठीक इसका उल्टा होगा, यानी कि 7:8 का रेशियो होगा. क्लियर है? अब क्योंकि हमारा डिस्टेंस की वैल्यू से क्वेश्चन के आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड ए की है 7 km/h और बी की है 8 km/h, या 7 और 8 है. ठीक है, ए की स्पीड 7 है. अब ए की स्पीड 7 है, टाइम लग रहा है 4 hours, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 7 × 4, तो दैट इज इक्वल 28. ओके, अब 6 से लेके 8 AM तक क्या होगा? ए हमारा 2 hours चल चुका है, यानी कि 14 डिस्टेंस ऑलरेडी वो कवर कर चुका है. 14 डिस्टेंस वो ऑलरेडी कवर कर चुका है. रिमेनिंग डिस्टेंस हमारी कितनी है? 14 की डिस्टेंस अभी बची हुई है, और अभी भी ट्रैवल कर रहा है अभिनव, और अब ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा प्रवीण. अभिनव की स्पीड है 7, प्रवीण की स्पीड है 8. अब दोनों स्पीड एडअप होंगी क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा दोनों को मिलने में? टोटल डिस्टेंस इज 14 और टाइम कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है 7 + 8, सो 14 अपॉन 7 + 8, यानी कि 14/15 आवर्स. मिनट में पता लगाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 14 × 4, दैट विल बी 56 minutes past 8, यानी कि 8:56 विल बी आवर आंसर. क्लियर है? ओके, इस क्वेश्चन में तो ये दिक्कत नहीं है, बट कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे कहे कि 9:15 पे दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं. ठीक है, 9:15 है और फिर वहाँ पे 56 ऐड करना है, तो कभी भी हड़बड़ी में ये नहीं करना है कि सीधे से 56 देखते ही आपने आंसर मार्क कर दिया. ये देखना है कि आपका स्टार्टिंग टाइम क्या है. यहाँ पे तो 8 AM है, पर किसी में 8:15 या 8:20 या 8:25 कुछ भी हो सकता है. इजंट इट सो? किसी और क्वेश्चन में तो ये फंसाने के लिए एग्जामिनर ऐसा कर सकता है. हमेशा बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना है. ठीक है, ओके. Now going to the next question. Question is saying Bolt covers half of his journey by train at 90 km/h, 1/3 of the remainder by bus at 30, and the rest by cycle at 10. Average speed during the entire journey. Average speed के तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भरे हुए हैं, बार बार ये एग्जाम में पूछा जा रहा है. और आप देख रहे होगे जैसे कि स्नैप में एक पैटर्न है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, सेम टाइप के पैटर्न. Isn't it so? So that is why the previous year question practice is very important in these exams. ओके, सो पहला हाफ जो है 90 की स्पीड से ट्रैवल किया है, 90 की स्पीड से ट्रैवल किया है. देन 1/3 ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा है? d/2. अब d/2 बच गया है और उसका 1/3 कितना होगा? d/2 × 1/3, यानी d/6. 1/3 ऑफ द रिमाइंडर वो ट्रैवल किया है 30 की स्पीड से, एंड देन बचा हुआ कितना हुआ? d/2 d/6, यानी कि 2d/6, यानी d/3 बचा हुआ है, एंड दैट हैज बीन ट्रैवल्ड एट द स्पीड ऑफ 10. क्वेश्चन एवरेज स्पीड पूछ रहा है. अगेन डिस्टेंस हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, हमें ध्यान क्या रखना है कि d/6 जो सबसे छोटी वैल्यू है, एलसीएम को इसके बराबर रखते हैं ताकि सारी वैल्यूज हमारी इंटीजर में आए. ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहोगे तो हमेशा कुछ भी वैल्यू कहीं पे मान लोगे तो फिर फ्रैक्शन आ जाएंगे, फायदा क्या है? तो हमें इंटीजर में रखने की कोशिश करनी है. 90, 30 और 10 का एलसीएम ऑब्वियसली 90 आएगा. ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया है स्पीड. डिस्टेंस मान लेते हैं, d/6 की वैल्यू 90 है, तो अगर d/6 90 है, d/3 उसका डबल होगा यानी 180 होगा, और d/2 उसका 3 टाइम्स होगा यानी कि 270 होगा. सो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 6 टाइम्स ऑफ 90 यानी कि 540. टोटल टाइम कितना लगेगा? 270/90 3 आवर्स का, प्लस 90/30 3 आवर्स का, प्लस 180/10 18 आवर्स का. सो 540 डिवाइडेड बाई 24. ठीक है, 6 से जा रहा है, 4 बचेगा, 90/4 यानी कि 22.5 km/h. दिस विल बी आवर आंसर. Isn't it so? क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन. ओके, इस सेशन में इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं, और जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं अभी टाइम स्पीड
क्वेश्चंस रहे हैं, 10-12 क्वेश्चंस और होंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और एक अच्छा सा केसलेट है, मुश्किल केसलेट है, DI केसलेट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो उसको भी हम सेपरेटली टैकल करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड वन। सो दैट विल टेक टाइम, उसमें अराउंड 15-20 मिनट का समय लग सकता है। अच्छा सवाल है तो उसको करना भी ज़रूरी है, बिकॉज अगर वैसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो यू शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अगर तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। कोई कहीं पर डाउट रह गया किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।